ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਬੜੈਚ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਖਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਿਖਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਗੀਨਾ ਬੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ CIIWN ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ CII ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਰੀ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਰਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਟ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੇਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਆਰਟ ਫॉर ਇਨਕਲੂਜਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਓਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਡਰਮ ਬੀਟਸ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡਰਮਸ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ, ਸਮਾਂ, ਪਿਆਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈਪੋਲਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਂਗੀ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਚਾਹ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੱਚਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। This is the first time that North India has seen a festival like this being organized. ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ CII ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਖਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੇਕ ਤੇ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? पता है हमें लगा कि कोविड के टाइम पे बच्चों को घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੈਰੇਪੀਜ਼ नहीं हो पाती ऑनलाइन। तो ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ कि आफ्टर कोविड बच्चों के लिए कोई ऐसा चीज़ किया जाए जिसमें उनके पास खूब अपॉर्चुनिटी हो अपने आप को एक्सप्रेस करने की। और ये भी दिखाना चाहते हैं हम कि हमारे बच्चों को घर में बंद करके मत रखिए, इनको बाहर निकालिए। जितना समाज इन बच्चों को बाहर देखेगा, जितना उनके साथ इंटरैक्ट करेगा, उतना ही उनके बारे में समझेगा, और जितना उनके बारे में समझेगा उतना ही उनको एक्सेप्ट करेगा। और यही इस आर्ट वर्क का, इस जो बेसिकली आज इवेंट है, इसका यही मकसद है। जैसे कि मैम आपने बताया कि कोरोना के टाइम है ना, सो हमने स्कूल भी जैसे कि क्लास लग रही है, स्पेशली गवर्नमेंट ने इन बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि ये तो ना ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते थे। सो आपके कहाँ से आपने सोचा कि ये बिखम ने कि ये अब से ये स्टार्ट किया जाए? देखिए, मैं चाहती हूँ और ये मैं मैसेज भी देना चाहती हूँ कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको आगे आना चाहिए। मतलब आपके प्रॉफिट्स आप जितना कमा रहे हैं, बट आप व्हाट आर यू गिविंग बैक? समाज को वापस भी तो कुछ देना है ना आपको। और बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। और मैं ये भी चाहती हूँ कि हम जो ये एडल्ट्स हैं, जो जिनको डिसेबिलिटी है, चाहे इंटेलेक्चुअल हो जो कि हम देख नहीं सकते, या फिजिकल हो जो दिखती है, दोनों ही डिसेबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी वर्क प्लेस को बहुत एनरिच करेंगे। ऐसा नहीं है कि सोचने में लगता है कॉर्पोरेट्स को कि हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा इनके लिए, लेकिन आपको ही नहीं करना पड़ेगा, वो लोग भी आपके इक्वल कंट्रीब्यूटर्स रहेंगे आपके वर्क में, आपके बिजनेस में। तो उनके लिए दरवाज़ा खोलिए अपना, ये मेरा सुझाव है फॉर कॉर्पोरेट्स। एंड सरकार के लिए भी आप करते हैं, आप लॉज निकालते हैं, आप राइट टू एजुकेशन निकालते हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन का फ़ायदा बच्चों को कहाँ हो रहा है? मतलब मैं एक अवेयर पेरेंट हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, फिर भी मेरे बच्चे के लिए मेन स्ट्रीम स्कूल में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो बाकी बच्चे जो स्मॉलर टाउन्स में हैं, जो गांव में हैं, उनके लिए क्या है? तो सरकार को ये दिखाना है कि ग्राउंड पे काम होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम बिकम का ये स्टेप है, जब इससे पहले भी कम ने किया है? तो बिकम हैज़ बीन इन्वॉल्व, वो डिसेबिलिटी सेक्टर से इन्वॉल्व है। एक स्पेशल स्कूल है डिस्कवरेबिलिटी मोहाली में, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये पहली बार नहीं है, बट बिकम की कमिटमेंट रही है नॉट जस्ट फॉर द डिसेबिलिटी सेक्टर, बट ऑल्सो जो वेलबींग होती है हमारी, मेडिटेशन वर्कशॉप्स और ये सब, कि इंसान को अपना ध्यान पहले रखना चाहिए। वी नीड टू लुक आफ्टर मेंटल हेल्थ। तो उस फील्ड में भी बिकम ने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये पेंटिंग का आप करवा रहे हैं, सो पेंटिंग के रिलेटेड ही होता है या किसी और भी आर्ट, जैसे बहुत सारे आर्ट होते हैं वो भी आप करवाते हैं? नहीं, जैसे इसके बाद आप देखेंगे बच्चे ड्रम्स बजाएंगे इकट्ठे, एक ग्रुप आ रहा है म्यूज़िक के लिए, तो वो बच्चे खुद बजाएंगे और दूसरे उनके साथ हेल्प भी करेंगे बजाने के लिए। ये तो एक इवेंट है, बट ऐसा बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स हैं जो हम करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल हो, एग्जीबिशंस हो, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, म्यूज़िक से रिलेटेड हो। एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किस चीज़ से जनरेट हो सकती हैं, कोई इस तरह का फेयर हो, तो ये चीज़ हम ऑन एंड ऑफ ये हम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि अदर कॉर्पोरेट्स भी इससे इनकरेज हों और ऐसी ही चीज़ों के लिए फैसिलिटेट करें बच्चों को। इस टाइम कितने बच्चे हैं आपके पास इस आर्ट के लिए? आज हमारे पास 80 बच्चे तो आ गए हैं। आई थिंक बारिश ने थोड़ा सा माहौल गड़बड़ कर दिया है, बट 80 चिल्ड्रन आर देयर विद अस। एंड अगर आपने देखा ही होगा कितना खूबसूरत आर्ट बनाया उन्होंने। मतलब सारे थॉट्स और एक्सप्रेशंस जो हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बहुत बच्चों को कम्युनिकेशन की इश्यूज़ हैं, बट आर्ट जो है वो एक माध्यम बन जाता है उस एक्सप्रेशन के लिए। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे बच्चे बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो कितना मुश्किल होता है उन बच्चों के साथ मिलना, उनको समझाना, उनको समझना? सबसे पहले तो मुश्किल होता है पेरेंट के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट केयर गिवर है, सबसे पहले ध्यान उसी ने रखना है। बहुत मुश्किल होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है बच्चों में, गुस्सा, एंगर भी आता है जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं। और मैं उनको समझने के लिए, आपने देखा होगा कभी कभी बाहर जाऊं तो बच्चे अपने हाथों को ऐसे कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, नीचे लेट जाते हैं। कोई जो बाहर से देखता है उसको लगता है कि ये बच्चा कैसा है, कैसे बिहेव कर रहा है, माँ बाप सिखाते नहीं हैं। नहीं, वो बच्चा तकलीफ़ में है, वो अपनी बात नहीं कह पा रहा है। मैं कहूँगी किसी को भी कि आप अपने मुंह के ऊपर टेप लगा दो 2 घंटे तक, और फिर आप अपना एक्सप्रेस करने की बताना चाहो कि आप क्या कह रहे हो, 2 घंटे बाद आप पागल हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कैसे बताओ। आप दरवाजे को मारेंगे, अपना सर मारेंगे, कोई मेरी बात सुने।
हमारे बच्चे भी वही उसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें समझिए, उन्हें अगर देखें कहीं मॉल में, मार्केट में, तो रुक के उनसे हेलो बोलिए, सत श्री अकाल बोलिए। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें ये नहीं चाहिए कि आप दुनिया बदल दीजिए उनके लिए, लेकिन उनको चाहिए कि हमें कोई मुस्कुरा के हमसे कोई बात करे, बस। जैसे आपने बताया कि वो चाहते हैं कि हम उसकी बात करें, ऐसे होता है ना कि बहुत सारे घरों में ऐसे होता है, अगर कोई ऐसा स्पेशल बच्चा किसी घर में होता है तो उसको या तो बंद कमरे में रखा जाता है, उससे बातचीत नहीं की जाती। जैसे आपने बताया कि मॉल में, मार्केट में तो ले जाना बहुत दूर है, उनसे बातचीत भी नहीं की जाती, ऐसा क्यों? देखिए, ये स्टिग्मा है, लोगों को लगता है, और मैंने बहुत सारा पंजाब, हरियाणा वगैरह में देखा है जहाँ पे फैमिलीज़ को लगता है कि अगर हम अपने बच्चे को बाहर निकालेंगे तो उसके जो भाई बहन हैं उनकी शादी मुश्किल हो जाएगी। और ये होता है, आज भी समाज में होता है कि अगर फैमिली में डिसेबिलिटी है तो उसके सिबलिंग्स या उसकी अंकल आंटी जो है उनकी शादियों में मुश्किल आती है, क्योंकि परिवारों को लगता है अगर एक बच्चा है तो आगे भी बच्चे को डिसेबिलिटी होगी, बिल्कुल ब्लड में होगा। पर मैं कहती हूँ कि पहले आप निकालिए, क्योंकि आप फिर कंप्लेन करते हैं कि समाज आपके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता। जब तक आप अपने बच्चे को बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक आप उसको समाज में आगे नहीं लेके जाएंगे, तो फिर समाज एक्सेप्ट कैसे करेगा? एक्सेप्ट तब करेगा जब उसे दिखेगा, जब एक कंटिन्यूसली उसको दिखेगा बच्चा, तब उसको समझ आएगा ना। वो समाज भी तो, उसकी कई बार गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि हम कोई बच्चा दिखाए तो उसको अप्रोच क्या करें। लेकिन समाज को ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये बच्चे पागल नहीं हैं, मंद बुद्धि नहीं है ना, इनमें भी दिमाग है। और जो फंडामेंटल चीज़ है, इन्हें भी प्यार चाहिए, इन्हें भी खुशी समझ आती है, इन्हें भी गम समझ आता है, इन्हें भी दुखी, जब उनके माँ बाप, उनके आसपास के लोग उनको पसंद नहीं करते, उन्हें समझ आता है। तो मंद बुद्धि और पागल का जो शब्दों का इस्तेमाल है, ये हमारे समाज को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और याद रखिए, एबिलिटी जो है हमारे में, जो कुछ भी करने की जो क्षमता है, वो टेम्परेरी होती है, वो कभी भी किसी के भी जीवन से जा सकती है। एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन सिर्फ जो डिसेबिलिटी होती है उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी के भी जीवन में कभी भी आ सकती है। जैसे मैं आप बहुत लंबे अरसे से आप जुड़े हो इससे, सो आपने कभी अपने इन फ्यूचर में कभी देखा है कि बच्चे रिकवर होते हैं? आपने ज़िंदगी में कोई अभी अभी ऐसा स्टेप देखा है कि बातचीत से ऐसे उनको आर्ट्स के जरिए रिकवर होते देखा है? देखिए, डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती हैं, वो दिस इज़ एक कंडीशन होता है, डिजीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, और ये जीवन भर रहती है, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है अगर सही थेरेपी हो और अगर सही प्यार दिया जाए, वो खुशी का माहौल दिया जाए हमारे बच्चों को, तो वो किसी भी दूसरे बच्चे के साथ जैसे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्या मैसेज क्या देना चाहोगे आप सरकार को या हमारे समाज को, क्या कहना चाहोगे? मैं कहूँगी, सबसे पहले तो यहाँ पर अपना थॉट प्रोसेस चेंज करिए, अपना एटीट्यूड बदलिए। जब यहाँ से बदलाव आएगा तो अपने आप बदलाव ज़मीन पर भी आने लग जाएगा। हमारे बच्चों को मुस्कुराइए, उनको हेलो बोलिए, उनका नाम पूछिए। हमारे बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए, शुरुआत तो कीजिए इससे, यही मेरी गुजारिश है। थैंक यू।